which talks about fiber optics. ठीक है? So in laser we talked about how laser is formed, what are the basic fundamentals physics wise of laser. In fiber optics we will be talking about, as the name suggests, some kind of a communication device. So fiber optics नाम सुना हुआ पहले previously? So as the name suggests, we will be talking about an optical fiber. We will be talking about the index profile that talks about the refractive index. What kind of refractive index is important in order to make anything work as an optical fiber. As you guys might already know, optical fiber is generally made of glass. ठीक है? तो कोई भी normal glass optical fiber क्यों नहीं होता? What might be the difference? उसकी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जब हम refractive index की बात करेंगे. Next we will be talking about total internal reflection, then certain properties, acceptance angle, numerical aperture, which will give you certain limitations. कि उस limitation के अंदर अगर तुम काम करते हो, then only your optical fiber acts as a communication device. Otherwise it won't. And in the last we will be talking about applications of optical fibers. So in the beginning, this is some of the history. Optical fiber कैसे बना था, किस वजह से बना था, some of those things. Let's just keep moving ahead. The important thing here is it is a cylindrical waveguide. So do you guys know what is a waveguide? अगर तुम इस वर्ड के दोनों पार्ट्स को अलग अलग समझो, wave and guide. So any material or any device which guides a wave to pass through it in a particular direction. For example, अगर हम लाइट की ही बात करें, जनरली यू से दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? अगर तुमको उसको फॉर सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारा जो सिग्नल सेंडिंग वाला जो बंदा है और जो सिग्नल रिसीविंग वाला बंदा है वो दोनों स्ट्रेट लाइन में ही हो, ऐसा होना जरूरी तो नहीं, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वेयरएवर योर रिसीवर माइट बी, योर लाइट शुड रीच दैट पॉइंट. You need to make sure that you are able to bend light according to your needs. जहाँ भी तुम्हारे जिस भी फॉर्म में तुम लेके जाना चाहो, तुम उसको उस अकॉर्डिंग बेंड कर सको. So the bending of light from through a particular medium is that particular thing. Bending of light, that thing is called a waveguide, guiding of the wave of light. So optical fiber यही काम करता है, जो लाइट का जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर को यूज करके लाइट को वो बेंड करता है जिस वे में तुम बेंड करना चाहते हो, जहां पे भी बेंड करना चाहते हो, ठीक है? So this is a schematic diagram of optical fiber. As you guys are seeing, there are 3 layers here. The outermost layer is a protective outer sheath. It is generally used for making sure that anything which is inside it is protected from the external environment. It might be protection from extreme temperatures, it might be protection from some kind of wear and tear, it might be protection from any kind of electrical noise also. So all of those protections are part of this protective buffer coating, जो outermost coating तुम्हें दिख रही है. Next layer is cladding. So cladding is a layer which is also made of glass only, but it is still different from this third layer which is called the core. So optical fiber में the communication part happens in these 2 layers, cladding and core. And to be very precise, it actually happens only in core. But एक optical fiber सिर्फ और सिर्फ core से नहीं बन सकता, ठीक है? इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना. सिर्फ core से तुम optical fiber नहीं बना सकते, तुम्हें cladding की जरूरत है. तुम्हें cladding के बिना तुम optical fiber नहीं बना पाओगे. इसकी वजह क्या रीजन है, आगे में भी डिस्कस करेंगे. Because the combination of core and cladding, this combination makes sure that light is bending. Standalone कोई भी glass light को सिर्फ एक बार bend कर सकता है, correct? जो तुम्हारी windows हैं, इन windows के ऊपर अगर तुम light डालते हो, तो you guys know when light travels from a rarer to a denser medium, it bends which way? Towards or away from the normal? Towards the normal. Whenever a light travels from a rarer medium to a denser medium, इस केस में rarer medium कौन सा? Air. If a light is traveling from air to glass,
it bends towards the normal. That means अगर कोई लाइट, अगर तुम्हारी ग्लास की बाउंड्री है, अगर कोई लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, वो ऐसे जाते टाइम इसका नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो इफेक्टिवली ऐसा तुम्हें दिखता है कि जो लाइट स्ट्रेट जा रही होगी वो हल्का सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. बट ये एक ही बार होगा, करेक्ट, क्योंकि ग्लास की एक ही बाउंड्री है, वहीं पे होगा, उसके बाद में अंदर तो स्ट्रेट चलेगी. अगेन जब वो ग्लास से बाहर आएगी, फ्रॉम ग्लास टुवर्ड्स एयर, जब वो उस इंटरफेस पे आएगी, तो अगेन अब क्या होगा, यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है. फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयरर मीडियम जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसी वजह से अगर एक ग्लास स्लैब है तो तुम्हें लाइट का पाथ ऐसे जिगजैग दिखाई देता है. स्टार्टिंग का जो लाइट का पाथ था, डायरेक्शन, और जो फाइनल डायरेक्शन है, वो दो डायरेक्शन पैरेलल बनती हैं, जस्ट कुछ शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जनरली यू गाइस माइट हैव सीन इन डिस्कवरी चैनल ऑल दोस थिंग्स, जब वो बेयर ग्रिल्स शिकार करने की कोशिश करता है मच्छियों की, वो नहीं कर पाता ना, बिकॉज क्या, उसको शिफ्टेड दिखती है इमेज. वो शिफ्टिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल. वाटर में वो जब देख रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में उसको दिख रहा है, दैट ऑब्जेक्ट माइट बी फर्दर अवे, बट उसको नजदीक दिख रहा है. सो व्हेनेवर ही और शी ट्राइज टू कैच दैट प्रे, देन जनरली दे मिस. तो अगर उस चीज को दिमाग में लेके चलो, देन यू विल बी एबल टू डू इट. सो इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन दोनों का होना क्यों जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू बेंड दैट लाइट रिपीटेडली. बार बार तुम अगर लाइट को बेंड कर सकते हो तो ही तुम लाइट को अपने हिसाब से कहीं पे लेके जा सकते हो. दैट इज द ट्रूथ ना. अगर सिर्फ एक बार बेंड होगी तो एक जगह पे जाएगी, फिक्स पोजीशन पे जाएगी. अगर तुम अपने हिसाब से उसकी पोजीशनिंग को बदलना चाहते हो, सो व्हाट यू नीड इज समथिंग व्हिच कैप्चर्स दैट लाइट एंड कीप्स ऑन बेंडिंग इट वेरेवर यू वांट. और वो चीज होती है बिटवीन दिस कोर एंड क्लैडिंग. अभी हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है. यू सी दिस स्टेटमेंट N2 is less than N1. It is talking about refractive index of cladding and refractive index of core. हमेशा, that is the rule in optical fiber, the refractive index of cladding will always be less than the refractive index of core. That means बाहर rarer medium है, अंदर denser medium है. ठीक है, बाहर रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, और इन दोनों में से लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम के अंदर. सो व्हाट हैपेंस हियर इज, कोई डाउट है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर इज द लाइट ट्रेवल्स इनसाइड द कोर एंड इट स्टेज इनसाइड द कोर. वो बाहर नहीं आती. वो बाहर क्यों नहीं आती, इसकी बात करते हैं. सिर्फ यू सी दिस डायग्राम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ ए स्टेप N1 and N2. That means refractive index of core is higher than refractive index of cladding. ठीक है, this 2A is the diameter of core and 2R will be the diameter of cladding. That is not of much importance to you, but effectively the height of this step is important to you. तो हम लोग अभी बात करेंगे कि why and how does this bending takes place, but effectively initially तुम्हें एक जो चीज बतानी जरूरी है, that is there are two kinds of optical fibers construction wise. One is called this step index fiber and another one is called this GRIN, gridded index fiber. So as the name suggests, step index मतलब index में step के हिसाब से abrupt change हो रहा है. You see this thing? The refractive index was something of cladding, then it abruptly changed to something else of core. एक step बन रहा है, correct? Hence the name step index. Gridded index fiber में grid तुम लोगों ने अगर कभी सुना होगा, grid is something where something is changing gradually. Gradient से grid word बनता है. So अगर कोई चीज gradient के फॉर्म में, यानी कि small steps में चेंज हो रही है, तो उसको gridded बोलते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? This is not abrupt change from N2 to N1. This change is gradual. So अगर refractive index gradually increase करता है और दोबारा decrease करता है throughout the core, then we say that kind of fiber is a gridded index fiber. ठीक है? अभी तो मैं इसके advantages वगैरह पता नहीं चलेंगे, but in short if I tell you, this fiber is much better in communication compared to this one. ठीक है? Details आगे मैं discuss करूँगा. अभी के लिए इतना जानता हूँ. ठीक है? Effectively होता है कोर क्लैडिंग में, दिस इज व्हाट हैपेंस. You guys are seeing
4 and 5 different cases, see 6 different cases. इंसिडेंट लाइट जो कोर में ट्रेवल कर रही है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टकराती है कोर क्लैडिंग बाउंड्री के, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग आउट। कब तक? एक पर्टिकुलर एंगल तक, जब तक वो उसके बराबर चलनी ना स्टार्ट हो जाए। एंड आफ्टर दैट अगर एंगल और शैलो होता जाएगा तो वो लाइट वापस अंदर की तरफ बेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला केस। व्हेन दैट हैपेंस देन इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक टेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की बाउंड्री पे जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है अंदर की साइड ही वापस, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही हो रहा है बट इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि इफेक्टिवली दिस बाउंड्री विल एक्ट एज ए मिरर फॉर दिस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग एट ए वेरी स्मॉल एंगल। बाकी सभी बड़े एंगल्स के लिए लाइट क्लैडिंग में चली जाएगी, ठीक है। जो भी लाइट क्लैडिंग में जाएगी उस केस में क्या होगा? जो भी लाइट क्लैडिंग में गई वो तो आउटर सरफेस तक जा रही है, दैट इज लॉस्ट, वो आगे नहीं जाती। जो लाइट यहाँ पे शैलो एंगल पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं बाय द लॉ ऑफ कोसाइंस। सो आगे भी फर्दर जब वो लाइट जाएगी वो नीचे वाली बाउंड्री से सेम काम करेगी जो पहले हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज उसी एंगल पे ऊपर से नीचे आ रही है जिस एंगल पे नीचे से ऊपर जा रही थी। That thing will keep on happening and light will travel within the core throughout the optical fiber. This is the ideal case scenario of total internal reflection. Due to high refractive index of core compared to low refractive index of cladding, total internal reflection takes place and the light keeps on bouncing from one end to another end within the core and it travels through, and this is called optical fiber communication. आइडिया क्लियर है? अब इसकी थोड़ी सी मैथ्स देखते हैं। इफेक्टिवली क्या हो रहा है? मैंने जैसे तुम्हें बताया एक शार्प एंगल पे लाइट थ्रू ट्रेवल कर जाती है क्लैडिंग, ठीक है। नीचे वाला पार्ट कोर है, ऊपर वाला पार्ट क्लैडिंग है। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं बिकॉज़ नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट इज दिस डायग्राम। सो इफ यू सी दिस डायग्राम्स, कोर से क्लैडिंग में अगर एक वेरी हाई एंगल पे आती है तो लाइट विल ट्रांसमिट थ्रू द क्लैडिंग एंड इट इज लॉस्ट, तो आगे यूज नहीं होगी। अगर एंगल एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल बनता है जब वो लाइट पैरेलल टू दिस जंक्शन चले, कोर और क्लैडिंग का जो जंक्शन है अगर उसके पैरेलल चल पड़े लाइट, देन दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा सी। हर एक ऑप्टिकल फाइबर का एक क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज डिसाइडेड बाय with what material and with what refractive indices that optical fiber has been made. अब अगर तुम ये एंगल इससे भी छोटा करोगे तो क्या होगा? तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी दिस एंगल थीटा 1 इफेक्टिवली अगर तुम इसको यहां से कंपेयर कर रहे हो छोटा हो रहा है, बट इट इज कॉल्ड मोर देन द क्रिटिकल एंगल। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम a normal. Remember, in optics angles are always measured with respect to normal to the surface, never with the surface. So normal to the surface से comparison में अगर तुम देखोगे this angle is larger than theta c. So hence the definition comes to be that for angle of incidence which is larger than the critical angle, the light will show total internal reflection through an optical fiber, and this is the whole basic physics on which optical fiber works. So see, this is the formula n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 for these two core and cladding के refractive indices के लिए. Once you move ahead, what you see is for a critical angle theta c, तुम्हारा n2 के साथ जो थीटा बन रहा है वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। This case theta 2 has become 90. If you take this case, you put that here, your n1 sin theta c becomes n2 simply. दोबारा देखो, इस साइड वाले को हम उस साइड से कंपेयर कर रहे हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इन्हीं का कंपैरिजन होता है इन लॉ ऑफ कोसाइंस। इस वाले केस में अगर तुम देखो थीटा 2 इज बिकमिंग 90 डिग्री, जो पहले मोर देन 90 था
less than 90 था compared to this line, vertical line. Now it is equal to 90 degree. अगर ये वाला केस हम लेके चले यहाँ पे, तो sin 90 becomes 1, it becomes n2 simply. So n1 sin theta c at critical angle, your n1 multiplied by sin of critical angle is equal to n2. You can represent it as this thing. Just shifted this thing here. So sin of critical angle is equal to the ratio of refractive index of cladding to the refractive index of core. This is the fundamental formula which defines an optical fiber. And this sin theta c is called, what it is called? Can anyone tell me? Theta c किसको बोलते हैं? ये तो पता है? It is theta c क्या है? Critical angle. ठीक है? अगर तुम sin of theta c लोगे, तो it makes a quantity which is उसका नाम भी पता है. It is called numerical aperture. For any angle which goes higher than theta c, if you take sin of that angle, then it becomes numerical aperture. हम इसके ऊपर आएंगे अभी आगे. वापस आते हैं वहीं पे. So this is the condition which causes total internal reflection. अभी ये कंडीशन हमने बोली है when the light is traveling inside the optical fiber. अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि वो लाइट अंदर आने से पहले बाहर क्या कंडीशंस होंगी, उसकी बात हम आगे करेंगे. अभी हमने सिंपली बताया कि अंदर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर वो उस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे, यानी कि अगर तुम कंपेयर करो विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, बड़े एंगल पे अगर वो चलती है, तो इट विल show you total internal reflection and light will keep on transmitting. So इस चीज को total internal reflection बोलते हैं. Right, if you're a strong this is a laser, video which shows how it works. Turning off the light, we see the ray totally internally reflect our two glass to ear interfaces. ठीक है? This is just a visual representation of how TIR works. Effectively, prism के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे? Right, if you're a prism के strong केस में जो तुम्हारा critical angle है, turning off the that light, we is see the generally ray very very totally small internally here, reflect जिसकी our वजह से two glass to your ear incident interfaces. angle almost always comes out to be larger than critical angle, and TIR happens at relatively more number of cases. ठीक है? There are two reasons behind it. First of all, due to that angle of prism, that almost 90 degree angle. Another reason is तुम्हारा जो interface है, that interface is glass to air. तो change in refractive index is very high. Optical fiber में क्या होता है? तुम्हारे refractive index change होता है from glass to glass. Core के refractive index से तुम cladding के refractive index में आते हो. That change is not that abrupt. Here the change is much more abrupt. ठीक है? इसलिए it is easier to do in this case. Next, let us go to acceptance angle. अभी जो मैंने बताया था, TIR तो हो रहा था, but TIR करने के लिए जो हमारी जो इनिशियल जो रे थी, उस रे को थीटा सी या फिर थीटा सी से बड़े एंगल के ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What are we supposed to do? This is that gives you that answer. Acceptance angle. As the name suggests, किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को इस एंगल के ऊपर फीड करो कि वो लाइट को कैप्चर करके आगे ट्रांसमिट कर सके. The limit of that angle is called acceptance angle. समझ में आया? दोबारा बताऊं. The angle up to which you can incident the light inside an optical fiber so that it is not lost during the transmission, that limit of angle is called acceptance angle. So if you see this thing looks like a cone from this side. ये तुम्हें कोन की तरह दिखाई देगा, जिस कोन का एंगल जो है थीटा ए है. अगर तुम थीटा ए से बाहर जाते हो, यानी कि तुम एक शार्प एंगल पे लाइट को अगर इंसिडेंट करते हो, मान लो तुम इस एंगल से ऐसे लाइट डाल रहे हो यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा? इफेक्टिवली तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा, सी लाइट एयर से ग्लास में जा रही है एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट? अगर तुम ये एंगल और शार्प कर देते हो, इट विल स्टिल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट वो लाइट यहाँ की जगह क्या पता यहाँ जाए, करेक्ट? बेंडिंग उतनी कम होगी ना उसकी, जितना तुम इसमें शार्प एंगल करते होगे. तो लाइट अगर यहाँ पे अगर ऐसे जाएगी, दैट मीन्स ये जो एंगल थीटा सी बन रहा है, यहाँ जो एंगल बनेगा that will be smaller than theta c. ये एंगल with this part
is larger compared to if angle becomes like this. So that angle which is like this, it will start to become like this. This is smaller, correct? When it becomes smaller than theta c, हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? If the angle is smaller than theta c, total internal reflection नहीं होगा, correct? अगर total internal reflection नहीं होगा, तो ये light जो यहाँ से आएगी, वो cladding में चली जाएगी, which proves that for any incident angle which is larger than acceptance angle, your light will be lost. It won't transmit through the optical fiber. तो कोर के अंदर क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर के बाहर एक्सेप्टेंस एंगल वाली कंडीशन को फुलफिल कराना होगा, ठीक है? इस चीज को ऐसे याद रखना. Outside of an optical fiber, if you make sure that your light is entering at an angle smaller than the acceptance angle, then you will make sure that inside the light will be traveling at an angle larger than the which angle? Critical angle. ठीक है? थीटा A, थीटा C. कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीजों में. दोबारा बताता हूँ. If your incident light is entering at an angle smaller than the acceptance angle, then only it will travel inside the optical fiber at an angle larger than the critical angle, which will make sure that TIR will occur. ठीक है? So इसकी अगर हम आगे मैच देखते हैं, it comes out to look like this. Again critical angle वाली कंडीशन लेते हैं. क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन के लिए हमने जो इनपुट डाली थी लाइट, that is written as this. n नॉट क्या है इसमें? It is the refractive index of air. क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं, we are talking about air to glass interface. तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए. राइट साइड पे क्या है? 90 minus theta c. Why? Because of this geometry. Right side of this boundary is 90 minus theta c. So it will be sine of 90 minus theta c with refractive index of what? Of core. क्योंकि कोर के अंदर हो रही वाली बात, ठीक है? So always make sure you look at the diagram properly कि तुम किस जगह की बात कर रहे हो. अगर कोर क्लैडिंग की बाउंड्री का एंगल बना रहे हो तो यूज n1 एंड n2. अगर तुम एयर और कोर की बाउंड्री के ऊपर बना रहे हो डायग्राम, यू विल यूज n0 एंड n1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है? जिस भी मीडियम की बात हो रही है, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. तो सिंपली इसकी मैथ्स को अगर हम सॉल्व करते हैं, 90 minus theta becomes cos theta, and if you solve this maths, the formula comes out to be sine of theta a, that means sine of acceptance angle, is equal to root of कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि 1 होता है. तो वी कैन रिमूव दैट पार्ट एंड द फार्मूला बिकम्स दिस. दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अगर तुम साइन को उधर लेके चले जाते हो. सो एक्सेप्टेंस एंगल इज थीटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ होल रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. क्लियर है? इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे? साइन ऑफ थीटा ए को. अभी जो मैं तुम्हें बताया था, इट इज न्यूमेरिकल अपर्चर. ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? कंफर्म बताओ. ठीक है? अब साइन ऑफ थीटा ए को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं. एक नया टर्म आया, अपर्चर का मतलब पता है तुम लोगों को? व्हाट इज अपर्चर? Aperture, if you know about cameras or if you know about human eye, aperture is the opening through which light is allowed to pass and reach some kind of sensor. In case of our eyes, the sensor is our retina, and in case of cameras, the sensor is generally a digital sensor, which might be either CMOS or CCD or something like that. So उस सेंसर तक लाइट को कितनी ज्यादा या कम लाइट को अलाउ करना है, that opening, opaque part की जो ट्रांसपेरेंट ओपनिंग होती है, उसको अपर्चर बोलते हैं. अब यहाँ पे इस अपर्चर के साथ न्यूमेरिकल लगा रखा है. समथिंग इज स्पेशल. ऑप्टिकल फाइबर की एंट्री पे तो मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा कि कुछ ब्लैक कोटिंग ऐसा कुछ नहीं बताया ना. इट इज ए ट्रांसपेरेंट थिंग ओनली. तो वहां अपर्चर कैसे बनता है? अपर्चर बन रहा है ड्यू टू दैट एंगल थीटा ए. हमने क्या बात करी? अगर लाइट एंटर कर रही है एट एन एंगल विच इज लार्जर देन दैट थीटा ए,
जो एक्सेप्टेंस एंगल का जो कोण बन रहा था, अगर उससे बड़े एंगल के ऊपर अगर तुम लाइट एंटर कराते हो तो हमने क्या बोला था, TIR नहीं होगा और लाइट आगे ट्रांसमिट नहीं होगी, करेक्ट? सो अगर एंगल लार्जर देन थीटा ए पे लाइट आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही, दैट एंगल इज इफेक्टिवली वर्किंग एज एन अपर्चर, दैट इज द बाउंड्री ऑफ अपर्चर। अपर्चर क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर जो ओपनिंग है उससे बाहर के एंगल्स की अगर लाइट आ रही होगी तो वो आपके सेंसर तक नहीं पहुंचेगी। यही काम यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेंस एंगल कर रहा है। और एक्सेप्टेंस एंगल क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए इसका नाम न्यूमेरिकल अपर्चर है। क्लियर हुआ आइडिया? मैथमेटिकली ड्यू टू फिजिक्स एक अपर्चर फॉर्म हो रहा है, उस अपर्चर को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन एंटर एन ऑप्टिकल फाइबर। उस ऑप्टिकल फाइबर में कितनी कम या ज्यादा लाइट एंटर होगी, दैट विल डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर, which is given by this formula sin of theta a. Sin of the acceptance angle is called numerical aperture, जो कि आगे हम दोबारा लिख के दिखा देते हैं। So it is the measure of amount of light which can be accepted by an optical fiber. Clear? Next is optical fiber communication system. ठीक है? तो अभी तक जो तुम्हें लॉजिक मैंने बताया वो लॉजिक अप्लाई कहां पे होता है इन रियल वर्ल्ड, उसकी बात करते हैं। सो इफ यू सी दिस होल डायग्राम, इस पूरे डायग्राम में सिर्फ ये ऑप्टिकल फाइबर है, इतना सा, बाकी सब जो है वो इनपुट सिस्टम एंड आउटपुट सिस्टम है बेसिकली। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस डायग्राम। इनपुट पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी जो कोई यूजर, तुम में से कोई यूजर है जो कि ट्रांसमिट करना चाहता है टू सम अदर कंट्री, लेट अस से। वो जो यूजर ने इंफॉर्मेशन दी, एक ड्राइव सर्किट होता है। What the drive circuit does is, वो इंफॉर्मेशन जो तुम दे रहे हो वो जनरली it will be in the form of bits, zeros and ones, ठीक है? और तुम्हारा सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पे चल सकता है। It is not supposed to be fixed for all over the world. They might have some kind of different system, ठीक है? मान लो तुम 5 वोल्ट पे काम कर रहे हो, कोई और इंसान 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा सिस्टम जिस भी अलग अलग वोल्टेज पे चल रहा होगा, उन सबको एक फिक्स वैल्यू के ऊपर लेके आने के लिए ये ड्राइव सर्किट होता है। It changes all of those voltages to a standard voltage which will be used by this light source. अब light source क्या है? कोई भी किसी भी फॉर्म की LED या फिर लेजर डायोड होगा। उस LED या फिर लेजर डायोड को अगर तुम एक पर्टिकुलर वोल्टेज दोगे तो वो लाइट की पल्स जनरेट करेगा। वो लाइट की पल्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रेवल करेगी। दूसरे एंड पे एक फोटो डिटेक्टर है जो कि एक लेजर डायोड या फिर एक फोटो डायोड का उल्टा पार्ट है। It works in the opposite direction. What it does is, लाइट के इनपुट के रिस्पांस में एक वोल्टेज की पल्स जनरेट करके देता है, ठीक है? तो ये वोल्टेज की तो पल्स जनरेट करके देगा, बहुत छोटी पल्स बनेगी ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली क्या हो रहा है, तुम्हारे फोटॉन्स को रिसीव करके वोल्टेज बनाई जा रही है। सो दैट मींस वोल्टेज बहुत छोटी होगी, उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करना जरूरी है ताकि तुम रिसीविंग के टाइम पे यूज कर सको उसको। इट विल बी एम्पलीफाइड एंड देन द सिग्नल रिस्टोरर, व्हाट इट डज इज, वो अगेन जो रिसीविंग वाला डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग उसकी वोल्टेज को दोबारा चेंज करेगा, ठीक है? एम्पलीफायर तो सिंपली एम्पलीफाई करके दे देगा। बाद में क्या पता तुमको उतनी हाई वैल्यू ना चाहिए हो, क्या पता थोड़ी लो चाहिए हो या फिर थोड़ी और ज्यादा हाई चाहिए हो, तो दिस विल बी द फाइनल आउटपुट, जैसे जो कि इनिशियल ड्राइव सर्किट कर रहा था। इट इज द वाइस वर्सा ऑफ दैट थिंग। सो दिस इज हाउ एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क वर्क्स। इसमें एक छोटी सी चीज जो समझने की है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। एज द नेम सजेस्ट्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, तुम्हारा अगर एक लाइट का सोर्स है उसके थ्रू तुम सिग्नल भेजना चाह रहे हो, सामने वाले रिसीवर को कौन सा पार्ट है जो सिग्नल लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो ट्रांसमीटर डिसाइड करेगा कि वो किस चीज को सिग्नल बना के भेजता है। एक वेव में यू कैन मेक श्योर कि तुम्हारी वेव की वेवलेंथ सिग्नल हो, यू कैन आल्सो मेक श्योर कि तुम्हारी वेव की एम्पलीट्यूड वाला पार्ट को सिग्नल हो। कैसे तुम ये करोगे? तुम अगर किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को कम या ज्यादा अगर कर सकते हो विद टाइम, और तुम वहां पे रिसीवर को बता देते हो कि अगर मैं 5 वोल्ट करूं तो उसको 0 मानना, अगर मैं इसको 10 वोल्ट कर दूं तो 1 मानना। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि तुम एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हो और वो चेंज इन एम्पलीट्यूड को एज एन इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है सामने वाला रिसीवर।
सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जो मैंने तुम्हें वोल्टेजेस में बताया है वो सेम काम इन ऑप्टिकल फाइबर होता है इन टर्म्स ऑफ लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, वो दो पल्सेस भेज सकता है, एक पल्स होगी लो इंटेंसिटी की, अगली पल्स होगी ज्यादा इंटेंसिटी की। दोज माइट वर्क एज वंस एंड जीरोस। अब हम आते हैं एक्चुअल में वंस एंड जीरोस के ऊपर। डिजिटल मॉड्यूलेशन, तुम्हारा कोई भी ऐसा सिग्नल जिसकी इंफॉर्मेशन तुम एज एम्पलीट्यूड नहीं भेजना चाह रहे हो। क्यों नहीं भेजना चाह रहे हो? As you guys might know, amplitude with distance decrease होता रहता है। So there is very high possibility कि ऐसा सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूजफुल नहीं होगा। So for longer distances, what we generally prefer is digital modulation. What we do is किसी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्ट कर रही है उसको तुम वंस एंड जीरोस में डिवाइड कर लेते हो या फिर ऑन एंड ऑफ में डिवाइड कर लेते हो। So effectively यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन होगी? Existence or not existence of a pulse will be the information rather than high or low intensity of the pulse. Previously हमने क्या बोला? पल्स की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करके तुम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे हमने क्या बोला? या तो वो पल्स एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, that will be the information. So it might be like 1 0 1 1 1 1 0 1. It might be like this based on the gap, time gap between those pulses. जो रिसीवर वाला सर्किट होगा उसके पास एक क्लॉक होगी, विद क्लॉक इट विल बी रिसीविंग कि ठीक है एट एवरी 1 माइक्रोसेकंड इफ आई एम गेटिंग ए पल्स इट्स a 0, if it's a 1, if I am not getting a pulse at next microsecond it is a 0. So these kinds of pulse they travel in this time axis and when they are received they are called digitally modulated signal. So these are the two fundamental types of transmission through an optical fiber. ठीक है, this is the undersea cable network of the whole of the world due to which all of your connected devices work. इन सब की वजह से तुम्हारी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चल सकती थी। So anyone of you who thinks कि हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, that is complete crap. This is the reality. Satellite communication is the worst form of communication because of lots of reasons. There is ionosphere, there are magnetic storms, lots of scenarios. This is immune to all of those. So this is how your internet works. ठीक है? So there are certain advantages of an optical fiber. This I won't bore you with because this I believe you guys can also yourself you can also study these things. There is no crosstalk. बहुत शॉर्ट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। इन रेगुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन और इन रेगुलर मेटालिक वायर कम्युनिकेशन, तुम उस वायर के साथ दूसरा वायर कनेक्ट करके तुम उसकी वोल्टेज पल्सेस नोट डाउन कर सकते हो, तो तुम किसी के भी सिग्नल को पकड़ सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्टिकल फाइबर में द सिग्नल इज ट्रेवलिंग विद इन द कोर। अगर तुम उस ऑप्टिकल फाइबर को तोड़ते हो और कोर में से सिग्नल उठाने की कोशिश करते हो तो दूसरे एंड तक कुछ नहीं पहुंच रहा उस टाइम पे, उसको पता चल गया कि सिग्नल रास्ते में कटा है। ऑप्टिकल फाइबर में तुम सिग्नल की चोरी नहीं कर सकते, तुम पकड़े जाओगे। रेगुलर वायर्ड कम्युनिकेशन में दैट थिंग कैन हैपन एंड दैट थिंग डज हैपन। ठीक है, another thing is the signal is immune to electromagnetic and radio frequency because वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, वो एक ऑप्टिकल सिग्नल है। तो अगर आसपास किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है जो कुछ एलसी ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है, उसकी वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो नॉर्मल डिवाइसेस है उनमें फर्क पड़ता है। इफ यू गाइस नो, इफ यू हैव वेरी ओल्ड स्पीकर्स और समथिंग लाइक दैट कनेक्टेड टू योर डेस्कटॉप्स और बगल में तुम्हारा फोन है रखा हुआ और उस पे कॉल आ जाती है, योर स्पीकर स्टार्ट टू जनरेट सम काइंड ऑफ साउंड। सुना हुआ तुम लोगों ने? वो क्या होता है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं वो तुम्हारे स्पीकर्स के जो वायर है वो कैप्चर कर रहे हैं उसको। वो ये चीज है, सिग्नल में फ्रीक्वेंसी का मिक्सिंग अप हो रहा है जिसकी वजह से वो साउंड जनरेट कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो ऑप्टिकल है। ठीक है, नॉन हजार्डस एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। सो देयर आर सर्टेन लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बॉम्बे तक केबल वायर बिछाऊं कॉपर का तो मेरे को रास्ते में कम से कम भी 100-150 रिपीटर लगाने पड़ेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप जब मेटालिक वायर बिछाते हो
आपका वोल्टेज ट्रेवल करती है, वोल्टेज विद डिस्टेंस ग्रेजुअली फॉल डाउन होती जाती है एंड इफेक्टिवली एंड पे क्या पता वोल्टेज माइक्रोवोल्ट से पहुंचे तो सिग्नल बचेगा ही नहीं, तो रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर में द लाइट इज देयर, इट ट्रेवल्स फॉर किलोमीटर्स विदाउट एनी लॉस होते हैं, दोस आर वेरी स्मॉल लॉसेस, तो इफेक्टिवली तुम्हें रिपीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज अनदर एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस आर ऑब्वियसली बहुत महंगी चीज है, कॉस्टली चीज है, देयर आर दीस काइंड्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। So this is one of the numericals which you guys can try out, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है। दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दिस एंड्स आवर यूनिट 4 लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग द रिवीजन काइंड ऑफ